Hi students, welcome to all of you here. Today we are going to talk about the very important topic once there, which is very sometimes it's not very essential but it's very important for us. Difficult नहीं है या फिर कोई समझता नहीं ऐसा नहीं है, but sometimes it's very important to us to understand this topic. Why it is very important to understand? Because when you are writing, in the writing we are making a lot of mistakes. Okay, if you want to make your writing very easiest one and good one, then you must follow this tips for there. The today's topic is there. Most of the students are making the mistake there. What about the punctuation marks? This punctuation marks are making your writing very clear and very better one to understand. It's very essential. Why it is essential? Because what exactly you want to express through your writing, because the writing is a skill, and in that skill you don't have to make the mistakes like this. Most of the new beginners are making making the mistake in this writing, in this one topic. What the punctuation marks and why they are very important to us, and what is the use of this punctuation marks. Today we are going to see this topic through these slides. Welcome to all of you again. And the first we have to understand why punctuation mark is very important. Okay, what are the punctuation marks? The first punctuation mark is what? Because whatever you are writing is showing, जो हम बोलते हैं, that same we have to write on the paper. Okay, but when you are writing on this, it's very important to express the particular topics to the person. It can be reached to the people properly. अगर ये properly पहुँचता नहीं है तो it means we are making the mistake in that. Okay, so therefore it's very important for us to make the punctuation marks. Which are the punctuation marks? See there are 14 type of punctuation marks, and out of that only 5 to 10 we know very well. First one is the period. Period means we can say this is a full stop again. Period, why we are using when especially in the tense we are using period punctuation mark means it is a full stop simply. Question mark. Third one is the exclamation mark or exclamation point, we can say it. Fourth one is the comma and the semicolon, colon, the dash, hyphen, then parenthesis, bracket, braces, apostrophe, quotation marks and ellipsis. ये जो 14 टाइप के मार्क्स हैं, इनमें से कोई डबल भी आते हैं, जैसे कि ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, बोथ आर द डिफरेंट वन. तो ऐसे बहुत सारे आते हैं. मतलब 14 आर द वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स एंड वी हैव टू नो देम वेरी वेल. अगर आपको समझ में एक अच्छी तरह से समझ में आता तो डेफिनेटली इन द क्वेश्चन मार्क और इन द आंसर पेपर any teacher can check your paper very thoroughly and very effectively, because it's impression of your paper. And if you are using the better language for this, definitely use this question mark, use this punctuation marks. So among that, the first punctuation mark we are saying this about the period. Period or full stop. Why we are using the full stop? When our sentence is completely finished, or after that we are not using the sentence as the same idea or continuing the sentence, उससे continue नहीं करने वाले, तो we have to use the full stop for this. Okay, उसके लिए full stop हमें use करना होता है. For example, the concept of this, the period is a place at the end of the declarative sentence statement through to be complete or after many abbreviations. तो हम कब इसे यूज़ करते हैं? एक तो सेंटेंस जब हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, दैट टाइम, और फॉर द एब्रीविएशंस. एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स. तो जैसे कि मैं जो मेरा नाम होता है तो उसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ. ओके, दैट टाइम वी आर यूजिंग द पंक्चुएशन फुल स्टॉप. सेकेंड वन इज दैट एग्जाम्पल, Jane and Jack went to the market. This is a sentence and this is completed one. Therefore, at last I am using the punctuation mark full stop. Second, I am using for the abbreviations. Why? What is the abbreviations? Here, her son John Junior was born on December. December का मैंने December पूरा नहीं लिखा तो उसके लिए full stop use किया. December. That December is the abbreviation of the December. The JR is the abbreviation of Junior. Okay, I am using this abbreviations with the help of full stop.
Next mark is there, question mark. When I'm using the question mark, simply when I'm why we are using the questions we use to get the information. We use the sentences to get the information from the particular person. ओके उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क ये होती है. बहुत सारे लोग जो होते हैं क्वेश्चन तो पूछते हैं व्हाट्सएप पे, मैक्सिमम टाइम वी आर नॉट यूजिंग द क्वेश्चन मार्क्स व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन. तो हमें ये नहीं पता चलता सामने वाला पूछ रहा है कि बता रहा है. ठीक है, खाना खा लिया तो उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो सामने वाला समझ लेता है. ओके, इफ आई एम हैव डिनर, तो द पर्सन कैन अंडरस्टैंड यस हैव हैड डिनर मीन्स ही इज आस्किंग और सेइंग. We can't understand the sentence. So question mark is very important. It's indicate the question or place for that interrogative sentences especially. When did Jane leave for the market? Last question mark means he is asking the question. Next, who is your hero? That hero is means here I am asking the question, getting some information. All this we can say. These are various examples that we can see. It is the question mark is using for the asking the questions. Okay, the next is there. Third number, these are the types of questions. Most of the people don't know how many questions are there. We have the two questions, especially structurally we have the two types of question. One is the WH type of questions and the verbal type of question. But when I am asking the questions types, so these are the question: closed question, open question, probing question, leading question, loaded question, final questions, recall and process questions, rhetorical questions. These are the various types of questions. तो इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव MCQ type of questions are also nowadays we are facing. So these are the various types of questions. ये 8 type के questions होते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. The next one is exclamation mark. When we are using the exclamation mark, this is the exclamation mark. The exclamation point is used when the person want to express sudden outcry or add the emphasis. Exclamative sentence में हमने देखा हुआ कि how when we are using, we use it to show the sudden cry. Suddenly the person feels something and suddenly it is come out from his inner mind. वो expression होती है, इसके लिए हम exclamation mark use करते हैं. For example, holy cow, अंदर से आई हुई चीज़ है, अंदर से आया एक्सप्रेशन है, दैट इज यूजिंग द एक्सक्लेमेशन मार्क. सडन क्राई, माई ब्रदर एंड माई मदर इन लॉज रेंट्स मेक मी फ्यूरियस. एक्सप्रेशन है, डर है बेचारे का. यस आई विल मैरी यू, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क अगेन. ओ दैट इज गॉर्जियस न्यू ड्रेस, दिस इज अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क. वी कैन अंडरस्टैंड इजिली विद दिस. वाओ, wow is a sudden cry. There is no any meaning of wow, especially wow, oh, इनका कोई मतलब नहीं है, but suddenly it is expressed the expression of particular emotion. So no, this is a strongly no. I didn't intend to locked myself out of this house. These are the examples of exclamation mark. Fourth one is comma. Why we are using the comma? When the full stop, against of full stop, when the sentence is incomplete and want to continue it after that, or something new clause is going to be start, तो new idea, new concept अगर उसमें ऐड करनी तो that time we are using the comma for this. For example, the comma is used to show the separation of ideas or element within the structure of someone. Additionally, to be used in the number, dates and the later writing after the solutions, salutation and the closing. इन सब चीज़ों में हम उसे यूज़ करते हैं. नंबर की इसमें होगा, डेट होगा, द लेटर राइटिंग में स्पेशली जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो वी आर यूजिंग द कॉमा अगेन फॉर एवरी salutation that time. For example, डायरेक्ट एड्रेस, थैंक यू फॉर योर हेल्प जॉन. ये जो है हमने क्या किया उसे स्पेशली वी यूज़ दिस सैल्यूटेशन मार्क फॉर दिस. ओके, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प, इसके लिए भी हमने उसे यूज़ किया है. द थर्ड थिंग वी आर यूजिंग हियर,
Second one is separation. The next thing we are using for this, again, we went to movies and then we went to out a lunch. तो उसके कॉमा two sentences. Already I told you that when we are using the two sentences attached together, that time we use this type of comma again. Next one is separation, separating the list of elements within the sentence. Susie wanted to black, green and blue dress. Options we are using the options in that, and therefore having the list of this one, black, green and dresses. By separating these two, all of them, whether to add the final comma because before the conjunction in list of the matter or of debate. This final comma knows as the Oxford or the serial comma. ओके ऐसे जो फाइनल कॉमा होता है डिबेट में उसे हम ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं और सीरियल कॉमा भी कह सकते हैं. इज़ यूजफुल इन द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एलिमेंट और द फ्रेजेस बट इट इज़ यूज टू कंसिडर द अननेसेसरी इन सिंपल सीरीज सच एज इन द एग्जाम्पल अबोव. इट यूजुअली कम्स डाउन इन टू स्टाइल चॉइस बाय द राइटर. ये राइटर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि हाउ ही इज़ यूजिंग टू दिस वन. ओके, the next one is next our semicolon. When we are using the semicolon, especially when the sentence is, this is a incompleteness showing, incomplete sentence है और उसी को same concept we have to continue with this. Okay, by comma we are separating the things, but semicolon is showing that the same sentence we are using this one. यूज टू कनेक्ट द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो इसके ऊपर डिपेंड है, इनकम्प्लीट है, जो इंडिपेंडेंस और क्लॉज को उसे जोड़ने के लिए, डिपेंडेंस के लिए, उसे हम सेमीकोलन से यूज़ करते हैं. इट शोज द क्लोजर रिलेशन बिटवीन द क्लॉज दैन पीरियड इट विल शो. फॉर एग्जाम्पल, जॉन वॉज हर्ट, सेमीकोलन मीन्स अ कंटिन्यूस सेंटेंस इज देयर. ही न्यू शी ओनली सी टू ईट टू अपसेट हिम. तो ये जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, दिस इज वन इज द मेन सेंटेंस इज व्हाट, जॉन वाज हर्ट, एंड द सेकंड सेंटेंस इज just a independent sentence. Okay, the dependent John was hurt is a depending sentence. It's dependent, it can stand itself by. Second example, love is a ice cream, it is my favorite food. Sorry, I love ice cream, it is my favorite food. So I love ice cream is the main sentence, and it is my favorite food, this is a dependent sentence. What is on dependent? On the I love the cream, उसके ऊपर डिपेंड करता है. it is my favorite food, so you can't understand what I want to tell you specially. So means what, the first sentence I love ice cream is the dependent one, and it is my favorite food is independent. When I am attaching both of them, use the semicolon. Next one is I like cake. Again I make the semicolon, and ice cream is my favorite dessert. Okay, favorite dish. I knew great ice cream shop in Burlington, Vermont, Wickford, Rhode Island. ये सारे कंट्रीज के नेम है, पर्टिकुलर प्लेस के नेम्स हैं. ओके, दिस नेम्स आई एम यूजिंग बाय हेल्पिंग यूज द सेमीकोलन. द नेक्स्ट वन इज 6 नंबर इज डैश. सिंपल होता है डैश. व्हेन वी आर यूजिंग द डैश, डैश इज यूज टू सेपरेट द वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट. एक सेंटेंस में दो वर्ड्स को अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो दैट टाइम वी हैव टू यूज अ डैश. देर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ डैशेस. वन इज EN डैश एंड EM डैश. इनके ज़्यादा डीप नहीं जाना है, स्टिल आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू यूज द एग्जाम्पल स्पेशली. EN डैश इज व्हाट, ट्वाइस, it is a twice. Sometimes we are using the only one, sometimes we use 2 dash, sometimes we use 3 dash. अब 2 dash कहाँ पे use करते हैं? Especially that is used to writing in a printing, is indicating the range, connecting differences. For example, such as 1980 to 1945 or Princeton
डैश न्यूयॉर्क ट्रेंड्स, दिस इज EN डैश। यहाँ पे डबल डैश होता है लेकिन यहाँ पे वी यूज़ ओनली द सिंगल डैश टू शोइंग द टू थिंग्स। ये टू डैश का मतलब दो चीज़ों को हम एक करते हैं वहाँ पे। सेकेंड टाइप इज देयर EM डैश। EM डैश मीन्स वेयर वी आर यूजिंग द टू डैशेस, थ्री डैशेस together. Longer than a dash, the EM dash can be used in the place of comma, parenthesis or the colon to enhance the readable or the emphasize the conclusion of the statement. जब स्टेटमेंट को कंक्लूड करना होता है, पूरे से फिनिश करना होता है और वो पूरे जितना सेंटेंस हुआ है उसका सारा का सारा एक ही आंसर में आपको देना है, तो दैट टाइम वी आर यूजिंग द दिस टाइप ऑफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ शी गेव मी हर आंसर नो, हैविंग द EM डैश का मतलब ये भी होता है कि कम्प्लीटली स्टॉप, कंप्लीट हैविंग द वन गैप, साइलेंस है उसमें थोड़ा सा, ये दिखाने के लिए भी उसे यूज़ किया जाता है। वेदर यू पुट द स्पेस अराउंड द EM डैश इट नॉट स्टाइल, इट जस्ट शोइंग द कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंसी का नाम होता है जब वो EM टाइप का डैश दिया जाता है। तो नेक्स्ट वन इज 7 नंबर द हाइफन। डैश एंड हाइफन are something very most usable. Hyphen is used to join two or more words together into the compound term and is not separated by spaces. Space से दो जो चीज़ें होती है कंटिन्यूसली उसको जोड़ी जाती है। फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम, टाइम टू बैक टू बैक, वेल नोन, टाइम टेबल, क्लासरूम, ऐसे जो कुछ वर्ड्स हैं तो वी आर यूजिंग द हाइफन बिटवीन देम टू अटैच टुगेदर। जैसे कि पार्ट इज समथिंग डिफरेंट, टाइम इज समथिंग डिफरेंट, ये दोनों जो है अलग अलग है, पार्ट इज डिफरेंट एंड टाइम इज डिफरेंट, बैक टू बैक, तो इनके लिए भी हम हाइफन यूज़ करते हैं। वेल अलग है, नोन अलग है, बट बाय यूजिंग द हाइफन वी मेक देम टुगेदर, एक करने की कोशिश होती है। द नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, ईयर एंड, साइन इन, वार्म अप, mother-in-law, free for all, these are the various examples you can use in this. The next number is the square bracket. Especially brackets are the square of notations. Notation जो important notification उसमें होती है, राइटिंग में अचानक से आती है, that time we are using the square brackets. यूज़ फॉर द टेक्निकल एक्सप्लेनेशन और टू द क्लैरिफाई मीनिंग। किसी चीज़ का अगर आपको मीनिंग क्लैरिफाई करना है क्या, या किसी चीज़ का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट। स्पेशल इन साइंस बुक वी हैव फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। साइंस के जो बुक्स होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम आपको ये मिलेगा। इफ़ यू रिमूव द इंफॉर्मेशन इन द ब्रैकेट द सेंटेंस विल स्टिल मेक द सेंस। ये सिर्फ आपको रीडर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, इसका ऐसा नहीं कि ज़रूरी है। व्हेन समथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू फील दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द रीडर्स, दैट टाइम you are using square brackets to give the more inspiration to the readers. For example, he was the last person seen at the house. ओके, ये ही मीन्स वॉट मिस्टर जॉन, यू वॉन्ट टू टेल दिस जॉन। अगर ये निकाल भी देते हैं तो ही वॉज लास्ट पर्सन, ही वॉज तो कोई ना कोई सेंटेंस पर डिपेंड नहीं, बट ही मीन्स वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन मिस्टर जॉन। ओके, ज़रूरी नहीं कि मिस्टर जॉन वहाँ पे होना चाहिए, बट दिस इज माई आई वॉन्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन। बाय टोनी ब्लेयर, अ फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस इन 2007। तो मैं टोनी ब्लेयर को उनका नाम मुझे अगर पता होगा तो इट इज़ नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ही वॉज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अननोन अबाउट द टोनी ब्लेयर। तो उनको बहुत बार उनको पता नहीं होगा, ओके, तो इनके लिए इनटू ब्रैकेट आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन फॉर देम। तो ये दो टाइप का ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है, राउंड ब्रैकेट भी हो सकता है। देन अगेन प्लीज़ लीव योर मोबाइल टेलीफोन और टेलीफोन्स एट द डोर। अगर आपके पास एक है, दो है तो आप बाहर रखिए, डोर के पास रखिए। ये इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम टाइम आपको ऑफिस में मिल सकती है। पर्सनल कमेंट जो होगा तो मेनी पीपल लव पार्टीज़, आई डोंट। तो मेनी पीपल लव पार्टीज़ ये तो लोगों का है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग माई सेल्फ, आई डोंट लाइक सच पार्टीज़। तो इनटू ब्रैकेट आई वांट टू गिव माई पर्सनल कमेंट। Next one is 9 number.
is the braces. What is the braces? Especially when I'm using the numbers, this is the sign of braces. Especially in math, you can find out the braces. It's most of the using in that only. Are used to contain the two or more line of the text or the listed items to show that they are considered as the unit. They are not commonplace in most writing, but can be seen in the computer programming to show what should be contained within the same lines. They can also be used in the mathematical expressions. Okay, for example, इस तरह से तो स्पेशली जो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है एंड मैक्सिमम टाइम वी आर यूजिंग दिस इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. तो कंप्यूटर लैंग्वेज तो सबको नहीं आती बट मैथमेटिकल यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वन, फॉर एग्जाम्पल, शी हाईलाइटिंग द 6 numbers. 6 numbers दिखाने के लिए वन मोर देन वन आइटम्स आई एम शोइंग इन टू द वन टुगेदर. 2, 4, 6, 8, 10, 12 these are the on the ruler she made. This is the expression for that we are using. The next one is his behavior change at the pivotal ages 5, 11, 14, 12, 20. ये चीज़ें मैं आपको बता दी. दिस इज गिवन द एग्जाम्पल्स. एंड अगेन चूज द कलर आउट ऑफ देम टू पेंट द वॉल. इनमें से कोई भी एक कलर चूज कीजिए. मीन्स यू आर गिविंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विद इन वन ब्रैकेट. यू आर यूजिंग द मोर आइटम्स, देयरफॉर वी आर यूजिंग द ब्रेसेस. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पैरेंथेसिस. ये बहुत बार हमने सुना भी नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये पैरेंथेसिस इज़ व्हाट. द पैरेंथेसिस इज़ लाइक सेम लाइक ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट जिस तरह से होता है वैसे ही होता है, बट इट्स यूज इज समथिंग डिफरेंट. पैरेंथेसिस इज अ कर्व नोटिफिकेशन यूज टू कंटेन द फर्दर थॉट्स और द क्वालिफाइंग रिमार्क. हाउएवर पैरेंथेसिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉमास विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इन द मोस्ट केसेस. तो बहुत बार मुझे कुछ एक्सप्रेस करना होता है, आगे वाले कुछ केस करना होता है कि आई एम यूजिंग द पैरेंथेसिस. स्पेशली जो ड्रामा अगर आपने पढ़े होंगे तो स्क्रिप्ट पढ़े होंगे तो स्क्रिप्टें जो स्क्रिप्ट में बहुत बार पैरेंथेसिस का इस्तेमाल होता है. जॉन एंड जॉन हु वेयर एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड सिस्टर. ये इंफॉर्मेशन मैं आगे के लिए यूज़ करने वाला हूँ. द सेम इंफॉर्मेशन आई एम यूजिंग हियर. जॉन एंड जेन बोथ हैव रेड हेयर. तो बोथ हैव रेड हेयर मीन्स इंफॉर्मेशन क्या है कि मेरी बोथ आर हाफ ब्रदर एंड सिस्टर. एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर इन विच सेंस हैविंग द रेड हेयर. दिस इज अ पैरेंथेसिस. दूसरा जो एपोस्ट्रोफी स्पेशली यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन द वर्ड, रिलेशन विद द वर्ड. ओके, स्पेशली इसका यूज़ जो होता है वो ऑफ के लिए यूज़ होता है, OF. इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है. S यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम. एपोस्ट्रोफी S हम यूज़ करते हैं. एपोस्ट्रोफी इज़ यूज टू शो इनडायरेक्ट द ओमिशन ऑफ द लेटर और द लेटर फॉर्म वर्ड टू पॉजिटिव केसेस और द प्लूरल्स ऑफ द लोअर केस लेटर्स. जो बहुत कभी कभी होता है कि कुछ स्पेलिंग जो होते हैं बहुत बड़े बड़े स्पेलिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ऐसे जो कुछ बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इसको मैं राइटिंग में लिखते हुए कभी कभी एब्रिविएशन में लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ. तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करता हूँ. बीच के जो लेटर्स हैं उसको निकाल के रख देता हूँ, बाजू में रखता हूँ, ओमिट करता हूँ, कुछ ओमिट होती है. तो आई एम यूजिंग द वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सच वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल सी हियर ओमिशन ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड से ओमिट करते हैं उसे. यहाँ पे आई हैव सीन ये है, तो आई हैव सीन की जगह मैंने यूज़ किया आई हैव सीन. उसमें हैव का जो एच है उसे अवॉइड कर दिया, ओमिट कर दिया बाय यूजिंग द एपोस्ट्रोफी वन. दैट मूव्स सेवरल टाइम्स. शी वॉजंट, यहाँ पे वॉज नॉट था तो उसे मैंने एब्रोवेट करके वॉजंट बना दिया. द ओनली वन हु न्यू द आंसर. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर पॉजेसिव जब होगा तब. साराज डॉग बीट द नेबर. साराज डॉग मीन्स डॉग ऑफ सारा. Plus possessive means it is a relative with the Sarah. The dog is related with the Sarah. So Sarah's dog, Sarah का कुत्ता. Okay, तो means what? The dog of Sarah. तो उसको मैंने इतना घुमा के करने के बजाय इसको शॉर्ट बना के लिए हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं.
द नेक्स्ट वन इज प्लूरल फॉर लोअर केस लेटर्स. 6 people were told the mind their peas and the quiz. Peas means P there and Q there. तो Q और P का इस तरह से हम इससे एब्रीविएट किया हुआ ये वर्ड है. इन शॉर्ट, noted that according to the Purdue University, some teachers and editors enlarge the scope of use of apostrophe and prefer their use on the symbol ends. ये इस तरह का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं. नंबर्स के लिए भी ऐसे यूज़ किया जाता है. 7th कैपिटलाइज लेटर्स के लिए भी ऐसे यूज़ होता है. इन लाइक अ ब्रैकेट इज गिवन देयर. तो इन सब के लिए एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है. जनरली आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड नेक्स्ट वन इज 12 नंबर कोटेशन मार्क. ये बहुत बार कोटेशन मार्क बहुत ज़रूरी होता है. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग. इसमें दोनों आते हैं. कोटेशन मार्क में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों आते हैं. बट यहाँ पे वी आर जस्ट लुकिंग एट द सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा. अभी कोटेशन मार्क समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर राइटिंग दैट वी आर शोइंग थ्रू दिस कोटेशन मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल आर पेयर ऑफ प्रोनाउंसिएशन. ओके, जब डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है तो डबल इन्वर्टेड कोटेशन में स्पेशली हम जो बोले हुए शब्द हैं उन्हीं शब्दों को लिखते हैं. एंड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वी जस्ट यूज द इम्पॉर्टेंट थिंग. वी वॉन्ट दैट ऑडियंस शुड नो दिस, रीडर शुड नो दिस. अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वी आर पुटिंग देम. Here the pair of pronunciation make the use primary mark of the beginning and the end of the passage, attribute to another and repeat word for the words. They are also used to indicate the meaning and indicate the usual dubious status of the word. इन चीज़ों के लिए जब ending होता है for ending, the starting with something and ending with the something, we are using the quotation marks. For example, don't go outside. This is a speech given by me. She said. Okay, she said, don't go outside. This is a spoken word put into the double inverted comma as it is. Again, the single inverted comma we use for the most frequently or quotations for the quotes. बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर होती है तो दैट टाइम वी आर यूजिंग द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. फॉर एग्जाम्पल, Mary told the teacher, I saw Mark at the playground and she said, Bill started the fight and I believe him. यहाँ पे जो अंदर का जो सेंटेंस है इन मिडल, Bill started the fight, ये वो कहना चाहती है. Somebody tell to her, he said means उसने उसे कहा है कि उसने पहले बिल ने फाइट शुरू की थी. And everything she is telling to teacher, Mary is telling to teacher. And Bill started the fight. Who said that? Mark told to the Mary. Next one is there. Ellipsis. Ellipsis is one again frequently used. ये एक मार्क है. ये ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है. But sometime when we are showing the gap something like जैसे हम हाइफन को यूज़ करते हैं उसी तरह से कभी कभी इसे यूज़ किया जा सकता है. एलिप्स इज द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेड बाय द 3 dots or 3 stars. Is occasionally demonstrated with the 3 asterisks. The ellipse is used in the writing or the printing to indicate the omission or especially of letters or words. Ellipses are frequently used within the quotations to jump from the one phrase to another. कभी कभी किसी की जो शब्द है वो इनकम्प्लीट है, बोलना चाहता है आई वॉन्टेड टू, तो ये वॉन्टेड टू के बाद वो बोलता नहीं, तो इसलिए हम कभी कभी इलिप्सेस यूज़ करते हैं. डॉट डॉट डॉट. तो समथिंग इज़ देयर, ही वॉन्टेड टू से समथिंग बट ही डिडंट से. और कभी कभी होता है कि ऑडियंस को पता होता है कि आगे क्या बोलने वाला है. अंडरस्टैंड? तो इसलिए इलिप्सेस का इस्तेमाल होता है. एंड ही वॉन्टेड मीन्स दैट टाइम वो उस टाइम में उससे वो जो सेंटेंस होता है वो ओमिट कर देता है. Okay. Ellipses are frequently used within the quotations to jump from the one phrase to another phrase. एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज पर जंप करते हुए उसे यूज़ किया जाता है. Omitting the unnecessary words that do not interfere with the meaning. जिनके मीनिंग के साथ इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है.
ठीक है, जब भी कोई फॉर एग्जांपल हीरो जो हमारा अगर प्रोटैगनिस्ट होता है तो वो कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना है डॉट डॉट डॉट, तो ऑडियंस को पता है कि उसने क्या सुना है, तो ही डोंट वांट, इससे लगता है कि ये अननेसेसरी थिंग है बताना, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि व्हाट ही एग्जैक्टली वांट टू से। अभी आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक यूज़ करते हो तो यू नो वेरी वेल कि किस तरह से एब्रिविएशन एलिप्सिस बहुत यूज़ होते हैं, बहुत सारा चीज़ होती है। कुछ जो वर्ड होते हैं जो ऑब्सीन वर्ड्स मैक्सिमम टाइम यूज़ हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली आई डोंट वांट टू से दिस, बस मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द वेरी ऑकवर्ड वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ एलिप्सिस। तो उसमें कुछ लेटर्स में लिखते हैं एंड यूजिंग द एलिप्सिस इन मिडल। Actually, who is telling he know very well and who is getting it, he also knows this. The last one is we are going to see colon. Colon is very simple one, जहाँ पे दो टिम्ब लगाए जाते हैं, जैसे हमारे टीका लगाते हैं, इस तरह के दो टिम्ब होते हैं। तो what is the use of this colon? The colon is made to two equal dots, okay, vertically two equal dots. One dot seat on the top on and small is between, means vertically they are arranged. To insert the colon of a traditional American keyboard, press shift and the colon semicolon key beside the rail. इससे कब इस्तेमाल किया जाता है? When we are using the some things, कुछ चीज़ें जो होती है वो important and उसके अंदर अगर हमें कुछ important चीज़ रखनी है that time. I like many healthy foods, carrot, broccoli, apples, spinach and the oranges. The first thing is what I mean healthy things. उसके example में देंगे जब when we are giving the example for this, that time we are using the colon. For example, in writing, the colon punctuation is used for one thing, an introduction. ये example है. Mary has only one thing on her mind, work. उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, वर्क। तो ये एग्जाम्पल जो चीज़ है वो बताने के लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। माई मॉम ऑलवेज टोल्ड मी टू फॉलो द गोल्डन रूल्स। ये रूल फॉलो करने की रहती है। कौन सा रूल है? ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको मम्मी के पास। ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। आपको आप जैसा ट्रीट और लोगों से अपेक्षित है वैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही ट्रीट लोगों के साथ किया जाए, ये एक उसकी मम्मी का थॉट है। मे बी हम मदर हैज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स शी इज़ टेलिंग, बट दिस इज़ वन एग्जाम्पल फॉर दिस। तो ये एग्जाम्पल बताने के लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको सारे ये 14 टाइप के जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो समझ में आए होंगे। एंड लव देम ऑल ऑफ, लर्न देम प्रॉपरली, लव इंग्लिश एंड लर्न प्रॉपरली। Also love the nature and the love animals. If you like the video, please give me a comment and subscribe the channel, like the video. Thank you all of you for listening this one. Bye bye.